Good afternoon, everyone. This is Dr. Aisha Butalia. Today, we are going to take a short session on how to write abstract from the AI tools for research paper writing or project making. Now, we all know that as a academic process, okay, we need to develop a project, micro, mini, major, whatever it is, in different phases of your degree course or diploma course or whatever it is in the academic process. And as discussed earlier, that research paper writing is a way of documenting your project in a very short and crisp manner. And you can publish that paper as a contribution of research towards society. सो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करते हो, समझ लो वो 50 पेजेस हो सकता है माइक्रो के लिए, मेजर के लिए वो 100 पेजेस हो सकता है। लेकिन आपका जो रिसर्च पेपर है वो शॉर्ट पेपर आपका 6 to 8 पेजेस का होता है, लॉन्ग पेपर आपका 12 to 20 पेजेस का होता है। तो जो आपका 100 पेजेस का रिपोर्ट है वो आप क्रिस्प फॉर्म में आप रिसर्च पेपर के थ्रू you try to, because nobody is interested in your 100 pages of report when you present in your conference, right? In fact, आपका 8 pages of the paper can be converted into 8 PPTs and you can present it over there. और जब उसकी proceedings छपती हैं, so minimal pages can be, क्योंकि there are a lot of papers being submitted in the conference and journal. So उनका एक format होता है. So they give you a way to propose your technology work, जो भी आप आपके as a researcher, as a student, as a scholar आप पढ़ते हैं। तो उसमें एक मेजर पार्ट होता है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। एन एब्स्ट्रैक्ट इज एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू टेल हाउ यू आर प्रपोजिंग योर वर्क, जिस पे आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, है ना, जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। फाइनली आप what are the steps or what is the procedure or how you are going to go ahead with your project making और रिसर्च पेपर राइटिंग। तो कई बार रिसर्च पेपर राइटिंग इसलिए भी हेल्प होता है कि आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते कई बार आपको ये नहीं समझ आता है स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। तो जब आप पेपर राइटिंग के पार्ट्स को फिल करने लगते हो तो आपका एक सेल्फ गाइड बन जाता है आपके प्रोजेक्ट मेकिंग का। सो दीज थिंग्स गो साइमल्टेनियस। एब्स्ट्रैक्ट हालांकि लोगों, people or students don't think it's important, but it is the first thing after your title a person is interested to look into. If your abstract looks quite crisp, precise, and interesting to the reader, then only that person would be interested to go ahead with the later paper. Sometimes your title and abstract is uploaded free of cost, and if the person likes the abstract, your paper is uh, it has some cost to get it seen overall. So that's why abstract is very, very important. It is that impressive. Okay, your biodata abstract is also very, very important. So once again, I'll just say that abstract is how you're proposing your project work. You know, you can write an abstract in your report, project report, or you can write an abstract in your paper, whatever it is. So abstract is basically what? It is a proposal and the methodologies which you are trying to highlight what is going ahead in the report and the paper. So not wasting much time, one of our student, we have already shared on the channel about her presentation on this particular her case study on reinforcement learning subject, uh, emotion recognition based music system. Now, she was a student of reinforcement learning, and a case study was to be designed using the all the RL techniques which they have studied. For example, MDP, MRP, dynamic programming, Monte Carlo, Bellman equations, and so on. Supervised learning, unsupervised learning, okay, feedback based learning, reward based learning, policy iteration. So all those algorithms which they learned in parallel, they were supposed to implement that using a case study so that they can understand the concepts better. So this was a problem statement. In that video, we shared that how you can use AI tool like ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek. Okay. And you just put that you want this is your somehow title.
you say that it was for the subject of reinforcement learning. You can also specify some topics, like for example, sometimes students have done certain assignments on reinforcement learning. कुछ असाइनमेंट्स उन्होंने किए थे, कुछ नहीं किए थे, तो जो किए थे उसका उनको नॉलेज है, और जो कुछ चीजें उनको फैसिनेट भी करती है, तो आप स्पेसिफिकली भी चैट जीपीटी या जेमिनाई, डीपसीक या कोई भी एआई टूल को दे सकते हो, specify कर सकते हो algorithms. Okay, so finally using that, and you can write that please frame a problem statement or a research paper title which is innovative based on, you can put this, and reinforcement learning and some of the algorithms, whatever prompt engineering you feel like. जितना आप better उसको prompt दोगे, आपको उतना अच्छा टाइटल देगा. फाइनली ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको भी और क्रिस्प किया जा सकता है इफ इट इज रिलेटेड टू अ रिसर्च पेपर टाइटल. तो इसको भी आप क्रिस्प कर सकते हो. अगर आपने उसको रिसर्च पेपर टाइटल बोला तो वो खुद ही इसको क्रिस्प कर देगा. Now, this is my format which I'm sharing all to you specifically for abstract. It's very primary, but अगर आप इस तरीके से abstract लिखोगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर पाओगे. कई बार स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ थियोरटिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं. कई बार वो टेक्नोलॉजी मिस ही कर देते हैं. वो आईटी के स्टूडेंट है, सीएससी के स्टूडेंट है, लेकिन कोई भी एल्गोरिदम मेंशन नहीं है. ऐसा लगता है कि किसी मार्केटिंग इंजीनियर का पेपर हम पढ़ रहे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सीएससी बैकग्राउंड के हो या आपका सब्जेक्ट अगर आरएल है, तो वो आपको मेंशन होना चाहिए. आपको एब्स्ट्रैक्ट में क्लियरली, अगर आपका आर्टिस्टिक पेपर है तो आर्ट के बारे में आपका मेंशन होना चाहिए. सो यू डोंट मिस दैट पॉइंट, बिकॉज दिस इज अ रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर मीन्स किसी ने ऑलरेडी उस पर कुछ काम किया था, आप उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो. तो आप यहाँ पे कोई लेक्चर या नोट्स नहीं प्रेजेंट कर रहे हो. वो 6-8 पेज में ऐसा लगना चाहिए that you have done a lot of research and you are presenting this to the world. So it has to be that much quality and precise. तो अगर आप ये, आई हैव मेड दिस मोर सिंपलर टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक और सब एआई टूल लिख के देता है, बट समटाइम्स दे मिस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो आप इसको और अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेटर दोगे तो यू कैन क्रिएट अ बेटर एब्स्ट्रैक्ट. तो आप ये जो मेरे गाइडलाइंस है, ठीक है, आप ये यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. आई कैन शेयर दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, दीज पॉइंट्स वहां से आप कॉपी कर लीजिए and you put it in the prompt for your AI tool with respect to the problem statement framed. और फिर आप देखिए कि वो आपको कैसा एब्स्ट्रैक्ट बना के देता है. प्लीज ब्लाइंडली उसको कहीं सबमिट मत कीजिए. प्लीज ट्राई टू रिवाइज इट. अगर आपको लगता है कि जो अल्गोरिदम्स उसने प्रपोज किया है, अगर आपने एक्चुअली असाइनमेंट्स किए हैं एंड यू फील दैट दिस अल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड हियर, दिस कैन बी अप्लाइड हियर, यू कैन इवन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यू कैन डू मोर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. क्या ये और भी कोई अल्गोरिदम्स है इस वर्क पे होने के लिए? क्या ये वाला अल्गोरिदम ज्यादा बेटर रहेगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ये सब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से और उसको बेटर करके आप ये टाइटल को फ्रेम कीजिए, टेक्नोलॉजी को फ्रेम कीजिए. यहाँ पे आप अपना खुद का टेक्नोलॉजी भी मेंशन कर सकते हो बनाने के लिए. एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक द एब्स्ट्रैक्ट. ओके, एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 250 वर्ड्स का होना चाहिए. दिस इज द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर IEEE. सो वो भी आप मेंशन कर सकते हो दैट राइट एन एब्स्ट्रैक्ट इन IEEE. आई चैलेंज यू कि कई बार एआई टूल्स आपको 250 वर्ड्स देते ही नहीं है, कम देते हैं. इसका मतलब IEEE फॉर्मेट लिखने के बाद में भी उन्होंने वैसा नहीं दिया है. तो ये आपको नॉलेज होना जरूरी है. इवन इफ यू आर यूजिंग एन एआई टूल, तो आप उसको बोलिए रीफ्रेम दिस इन 250 वर्ड्स. फिर एक बार उसने एब्स्ट्रैक्ट बना लिया, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है अपने एब्स्ट्रैक्ट में, आप ये बोलिए प्लीज एडजस्ट इट इन 250 वर्ड्स बट एड मोर पॉइंट्स टू दिस पॉइंट. Likewise, you can reframe your abstract. I would suggest आप अपना केस स्टडी जो आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, आप ऐसे फ्रेम कीजिए और उसको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बनाइए. ओके, इफ यू हैव एनी suggestions or any queries on this, you can ask us. But I again request you, don't just blindly copy paste the abstract done by the AI and paste it as your assignment given to you. Okay, just re-engineering it. It will be a fun when you understand कि इतने छोटी चीज से आपका खुद का एक इनोवेटिव एब्स्ट्रैक्ट बन गया. लेकिन आप अगर वो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा. Okay, because research is something which you enjoy if your knowledge gets upgraded. So this is just a short video to make you understand how you can reframe your title in a better way
एंड विथ द एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पेपर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट से पहले होता है। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट ही अच्छा नहीं है तो आपका पेपर वो आगे पढ़ेगा भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। दूसरा कि अगर कोई रीडर भी है, अगर वो उसके आपके पेपर को पढ़ने की इच्छा है या उसको खरीदने की इच्छा है, तो पहले तो आपको एब्स्ट्रैक्ट फ्रीली अवेलेबल देना होता है। इट हैज टू बी लाइक बुक का भी, अगर इफ यू आर राइटिंग अ बुक या आप कोई बुक खरीदते भी है, अगर उसका एब्स्ट्रैक्ट या इंडेक्स आपको फैसिनेट नहीं करता, यू डोंट नीड टू बाय दैट बुक। फॉर एग्जाम्पल री लर्निंग की बहुत सारे बुक्स हैं। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स पढ़े हो जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको कोई इंडेक्स पता चल गया कि कोई केस स्टडीज डिस्कस की है या इंटरेस्टिंग केस स्टडीज डिस्कस की हैं, तो हो सकता है कि इट में फैसिनेट यू टू बाय इट। अदरवाइज आपको लगेगा लाइक अदर बुक्स, इट इज जस्ट अ नॉर्मल book which is just you are wasting your money on it. So likewise, these indexes are very, very important. Okay. So we'll continue with another series, how to write the keywords and the literature survey in the next section. And also, whenever I frame those videos using AI tool, okay, already there are lectures which I've uploaded, how to write introduction of a project report or or a research paper, literature survey of a project report or a research survey. But the upcoming videos will be how to use an AI on that. I will be sharing that also in the description box, or you can go through the playlist channel. So I would like to stop here. Thank you for your patience listening. Have a nice day.